सो आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे कल ही रिलीज हुआ है। कल ही गवर्नमेंट ने 29th ऑफ जनवरी को ये रिलीज किया है। सो विल बी रीडिंग अबाउट इकोनॉमिक सर्वे एंड स्पेसिफिकली जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे है। बट बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिस ईयर, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली एन इकोनॉमिक सर्वे इज। सो इकोनॉमिक सर्वे कौन रिलीज करता है? If I'll see here, economic survey is released by the Department of Economic Affairs, DEA जो है under the Ministry of Finance. Ministry of Finance के अंदर Department of Economic Affairs जो है it presents the economic survey. ये बजट सेशन के फर्स्ट डे पे गवर्नमेंट रिलीज करती है एंड स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रिलीज करता है। And this is presented a day before the union budget is presented in the parliament. Now this time क्योंकि Saturday Sunday पड़ रहा था बीच में, so the economic survey was released on 29th of January, which is like 2 days before. So the document is submitted to both the houses of the parliament. एंड ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है ना, हमने तो ये जान लिया कि इट्स रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बट व्हाट इट एग्जैक्टली इज। सो इकोनॉमिक सर्वे जो है ये बेसिकली बताता है कि पिछले 12 महीने में, लाइक इन द पास्ट 1 ईयर, व्हाट ऑल डेवलपमेंट्स हैपेंड इन द इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, व्हाट वर द पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, how the country reacted to the policies, as in how the economy as a whole reacted, and the growth prospects of the economy. So यहाँ पे दिया हुआ है कि it shows the developments of the Indian economy पिछले 12 महीने में, over the previous 12 months, how the economy reacted to these policy initiatives. This is the highlight of the policy initiatives of the government, summarizes the performance on development programs and shows the growth prospects of the economy. So the chief economic advisor, you have the chief economic advisor, the current chief economic advisor as K. Subramanian. So he released the economic survey yesterday, that is 29th of January 2021. Now if you look at the foundational theme of, just a second, so if you look at the foundational theme of the economic survey of 2021, we see that the economic survey has the theme saving lives and livelihoods. Now ये तो बहुत ही ज़्यादा clear है that this economic survey is actually dedicated to the COVID warriors, to the frontline workers, to the health workers who dedicated the past 1 year in saving lives and livelihoods of 1,000 or a large number of people. Okay, so this is the foundational theme, which is saving lives and livelihoods. Now in the upcoming chapters there is a shlok. The shlok is taken from Mahabharat से ये श्लोक लिया गया है, which goes like, saving a life that is in jeopardy is the origin of dharma. So it is this shlok that forms the basis of our policy that was formed in the past 1 year, that the government adopted in the past 1 year, and this is taken from Mahabharat. Saving a life that is in jeopardy is the origin of dharma. Now if you look at the GDP status, because all the eyes are on GDP, हम लोग ये सब कहानियां नहीं जानना चाहते हैं, we just want to know how the GDP of the country was, how it performed. So if I talk about financial year 21, the GDP is estimated to contract, focus here, contract, ये negatively जाने वाली है 7.7% पे. Now if I talk about financial year 22, the estimated, ये estimated GDP growth है, and इधर हम real GDP की बात करें. There's a difference between real GDP and nominal GDP. So अगर हम real GDP की बात करें for financial year 22, that is going to be at 11%, which is close to 11.5% as predicted by IMF. ये मैं आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ IMF का, and if you want to know more regarding it, please let me know. Now apart from GDP, there were certain highlights of the economic survey, which is कि अगर हम जानते हैं कि पिछला past year जो past year था, that had a very negative impact over all the countries and all the economies across the world. लेकिन अगर हम specifically India की बात करें तो हमने देखा है कि सारे sectors,
ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स हैड शोन अ डिक्लाइन एंड एक नेगेटिव तरीके से उनका ग्राफ जा रहा है, बट इट वाज ओनली एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था दैट रिमेन्ड द सिल्वर लाइनिंग। एक पॉजिटिव a little growth that was positively shown was in the agriculture sector. Apart from it, all the sectors had a very negative growth. ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक एग्रीकल्चर था दैट रिमेन्ड अ सिल्वर लाइनिंग, दैट रिमेन्ड एक अच्छी चीज हमारे लिए फॉर द इकोनॉमी. नाउ look at the second point. It talks about economic recovery. It talks about V-shaped economic recovery. V-shaped as in हम पहले ऐसे the economy got declined ऐसे and it will see a growth ऐसे. So ये जो V-shaped है इसकी बात की गई है as the economic recovery. Now the economic survey also focuses on a mega vaccination drive. This according to the economic survey, this vaccination drive will help in shaping this V-shaped economy recovery. So this recovery, ये जो recovery वाला path रहेगा, that would be shaped, that would be helped by the vaccination drive. जो विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है दैट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये एक इकोनॉमिक रिकवरी में पॉजिटिवली हेल्प करेगा. Now, the economic survey also highlights a fact that the contact-based services, जो contact-based services हैं, and the manufacturing sector, there's also one sector which is the construction sector. I've not mentioned it here, I might have forgotten. So the construction sector, the manufacturing sector and the contact based services, ये तीन sectors and services हैं that were hardest hit by the pandemic. Obviously बात है, contact हमें social distancing maintain करने कहा गया था. We were asked to maintain social distancing. तो ये जो contact based service है ये obviously बात है कि ये काफी ज्यादा hit होगी pandemic से. नाउ अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे एक और चीज बहुत प्यारी हाईलाइट करता है विच इज दैट द जीडीपी कंजम्पशन एंड द नेट एक्सपोर्ट्स. सो हम जानते हैं कि पैंडमिक के टाइम पे द कंट्री रिड्यूस्ड इंपोर्ट्स, इंडिया रिड्यूस्ड इंपोर्ट्स, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी को जिस चीज ने स्टेबल करके रखा, जिस चीज ने मेंटेन करके रखा, दैट वाज द गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड द नेट एक्सपोर्ट्स. इस टाइम पे द एक्सपोर्ट्स, द नेट एक्सपोर्ट्स गॉट इंक्रीज्ड. सो ये दो जो चीजें थी, द गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ये जो दो चीजें थी दैट सेव्ड इंडिया फ्रॉम अ फर्दर डिक्लाइन. मतलब अगर ये दोनों चीजें नहीं होती या इसमें भी एक डिक्लाइन होता, अगर हमारे नेट एक्सपोर्ट्स स्टेबल ही रहते या कम होते, तो वी कुड हैव सीन अ फर्दर डिक्लाइन इन द इकोनॉमी. बट दीज टू थिंग्स helped India from a further decline. Now coming to the current account surplus. So ऐसा बोला जा रहा है that according to the survey that India will see a 2% current account surplus. This 2% might look small, but ये जो 2% current account surplus है, this is going to be the first पॉजिटिव, ये पहला पॉजिटिव बैलेंस रहेगा इन द पास्ट 17 ईयर्स. सी हमारे पास एक करंट अकाउंट होता है एंड एक कैपिटल अकाउंट होता है. सो दिस करंट अकाउंट विल सी अ सरप्लस. यहाँ पे एक सरप्लस देखा जाएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव बैलेंस देखा जाएगा विच वुड बी द फर्स्ट इन द पास्ट 17 ईयर्स. एंड ऐसा क्यों होगा? सो दिस वुड बी मेनली ड्यू टू द डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स. हमने देखा कि पैंडमिक के टाइम पे जो आपके इम्पोर्ट्स हैं, ये जो इम्पोर्ट्स हैं दैट वर drastically on a reduction side. ये जो थे ये काफी कम हो रहे थे these imports, whereas the exports grew. So as the exports grew and the imports were on a decline, India positively was affected. So यहाँ पे हमने देखा कि हमें एक current account surplus मिलेगा, which is a good news. Okay. Now as per IMF, India would be the fastest growing economy within 2 years. IMF के predictions के according India would be the fastest growing economy within 2 years. ठीक है, and India would be witnessing a double digit growth in the economy. ये चीज बहुत important हो जाती है that India would be witnessing a double digit growth in the economy. ठीक है, ये IMF के predictions हैं.
Now we will be discussing the economic survey. So this is the economic survey and how it looks like. तो इसका जो ये कवर पेज है, it says economic survey 2021 and यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी चीज बनी हुई है यानी कि एक बैलेंस पे या एक तराजू पे है जिसमें एक साइड पे रिस्क्स मेंशन्ड है, एक साइड पे अपॉर्चुनिटीज मेंशन्ड है. रिस्क्स में अगर देखा जाए सो इट टॉक्स अबाउट इकोनॉमी, हेल्थ, लाइफ्स की कैसे हमारी इकोनॉमी, कैसे हमारी हेल्थ, कैसे लाइफ्स को हार्म किया गया है. ठीक है. एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यहाँ पे रिफॉर्म्स, इन क्या रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ला सकती है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत एंड वैक्सीन की बात करता है. नाउ इफ वी सी हियर द इकोनॉमिक सर्वे इज डेडिकेटेड टू द कोविड वॉरियर्स. ये कोविड वॉरियर्स को डेडिकेट किया गया है. नाउ इट टॉक्स अबाउट, इसकी जो थीम मैंने आपको बताई सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स है. यहाँ पे कोविड वॉरियर्स जो है ये हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं टू अपहोल्ड इंडिया एंड देन देयर इज वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी. तो हम देख रहे हैं कि इट टॉक्स अबाउट वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी. सो द पास्ट ईयर सॉ अ डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड यहाँ पे अगर देखें सो इट टॉक्स अबाउट कि कैसे हमारी इकोनॉमी रिकवरी करने वाली है. एंड वन थिंग दैट विल हेल्प इन द रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी वुड बी द मेगा वैक्सीन ड्राइव. एंड यहाँ पे अगर देखा जाए द लास्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज आउटवे द रिस्क्स. ठीक है. ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं दीज कैन आउटवे द रिस्क्स, ये बात करी गई है आपके इकोनॉमिक सर्वे पे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज कि यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये बताते हैं कि आपकी जो पॉलिसी थी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जो रिस्पॉन्स था ड्यूरिंग द पैंडेमिक, दैट वाज गाइडेड बाय व्हाट. कुछ तो सोचा होगा ना, किसी चीज को तो देखा होगा कि क्या रिसर्च थी, क्या कुछ था जिसके कारण हमने ये पॉलिसीज हम लेकर आए, द गवर्नमेंट ब्रॉट इन. सो देयर वाज अ नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च बाय हैंसन एंड सार्जेंट. ये जो हैंसन एंड सार्जेंट की एक रिसर्च थी, that was a winning Nobel Prize research that said कि अगर कोई uncertainty आती है, so during that uncertainty we must make sure that the policies must make sure कि हमको losses को minimize करना है. and losses को कैसे minimize करना है, तो अगर यहाँ पे हम देखें कि pandemic जो है that is an uncertainty, that came as an uncertainty. so यहाँ पे ये जो pandemic है ये uncertainty है, and अगर हमें loss को कम करना है, so this loss can be reduced. like loss को कम करना है मतलब human lives के like loss of human life को reduce करना है. so that was supposed to be the priority. so ये हैंसन और सार्जेंट की जो रिसर्च है, इससे हमने पॉलिसी बेसिस बनाया कि हमको ह्यूमन लाइफ के लॉस को रिड्यूस करना है, क्योंकि जीडीपी तो वापस आ जाएगी, जीडीपी ग्रोथ वापस से हो जाएगी, बट व्हाट अबाउट द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ तो वापस नहीं आएगी ना. एंड दैट इज वेयर दिस श्लोक ऑफ महाभारत जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये श्लोक जो है ये पिक्चर में आ जाता है. एंड दिस वाज समथिंग दैट वाज आल्सो मेंशन्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे. नाउ द इकोनॉमिक सर्वे आल्सो सेज दैट देयर द इंटेंस लॉकडाउन, इंटेंस लॉकडाउन का एक नीड जो है पैंडेमिक के टाइम पे अर्ली स्टेजेस में है. इट इज नॉट नीडेड ड्यूरिंग द मिडिल स्टेजेस और ड्यूरिंग द एंड स्टेजेस. इस टाइम पे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत स्टार्टिंग में है, बिकॉज अगर मिडिल और एंड स्टेज पर हम लॉकडाउन लेकर आते हैं सो वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी अफेक्टेड बाय इट. इसलिए जो इंटेंसिटी ऑफ द लॉकडाउन है दैट ओनली मैटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक व्हिच वाज फॉलोड बाय इंडिया. Now if we talk about the mature and far-sighted policy response, तो एक ये चीज जो है ये फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है, that was very catchy. It said that India focused on saving lives and livelihoods, ये जो हमारा थीम है, and we took short-term pain for long-term gain. हमने short-term pain लिए. So यहाँ पे short-term pain से मतलब है आपका what all things we faced during the lockdown. लॉकडाउन के टाइम पे हमने क्या क्या चीजें फेस करी which was harmful for the economy. so ये चीजें जो हैं they were short term pain for long term gains. and also this talks about V-shaped economic recovery जो मैंने आपको explain कर दी. and it says that this economic recovery in the country is without facing a second wave of the pandemic, which is not the case with the European countries. ठीक है. and यहाँ पे वही मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव mentioned है that should enable the recovery in services. ठीक है. now coming to the next is the chapter 2. अगर हम chapter 2 की बात करें तो जो chapter 2 says talks about debt sustainability. ये जो chapter 2 है that talks about debt sustainability. It says that growth leads to debt sustainability. Does growth lead to debt sustainability? And the answer is yes, but it also says that it is not the case vice versa. Debt sustainability growth को नहीं लेकर आएगी. It would be growth that would lead to debt sustainability. ठीक है. Now, ये जो debt sustainability का concept है that was very well explained by the chief economic advisor using this example. It said that अगर year 1 है, year 2 है और year 3 है, and year 1 में
you borrow 100 rupees and invest these 100 rupees. तो अगर ये जो 100 रुपए है इसमें इसको बोरो करने में you have to pay an interest of 8%, which means when you are repaying you have to pay 108 rupees. Whereas if you invest this, there is growth rate of 12%, so you get back 112 rupees. तो आपको मिल रहे हैं 112 रुपए and you have to pay 108 रुपए, so the difference is of 4 रुपए, and that is the difference that you get, that is the 4 रुपए that you get. So यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. But if the case is vice versa, in the sense if the interest rate is more than the growth rate, if this is the case, then you do not get debt sustainability. यहाँ पे फिर हमें debt sustainability नहीं मिलती है, because debt as a proportion of GDP will increase. एंड यहाँ पे आपको लॉस होगा. मतलब इफ योर इंटरेस्ट रेट इज मोर देन द ग्रोथ रेट, देन आपको 112 रुपए नहीं मिलेंगे. यू विल गेट लेस रुपीज. लाइक मान लीजिए अगर ये केस जस्ट वाइस वर्सा हो जाता है, सो यू गेट 108 रुपए एंड यू हैव टू रीपे 112 रुपए, विच मीन्स यू आर एट अ लॉस ऑफ 4 रुपीज. सो ये चीज जो है दैट इज डेट सस्टेनेबिलिटी, एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर व्हाइल एक्सप्लेनिंग द इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है. Now you have the counter cyclical fiscal policy. Counter cyclical fiscal policy की बात करते हैं. So the counter cyclical fiscal policy means, यहाँ पे अगर मैं explain करूँ, so एक economy है that goes through the cycle of peaks and troughs. हर economy में peaks and troughs होते हैं. So when the economy is facing a peak, it means the economy is performing well, the private sector is performing well, it is time for the government to move out, to step back. यहाँ पे government के investment, government की policies का ज़्यादा need नहीं है. But when the economy is during the downfall, we see that the private sector is performing poorly. It is then that the government should step in. इस time पे government needs to step in. The government needs to help. The government needs to help the economy at large, the private sector as well. तो ये आपका काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में आ जाता है. सो इट सेज लाइक इन द कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूके. अच्छा, सबसे पहले तो ये एक नेगेटिव कोरिलेशन है. ये नेगेटिव कोरिलेशन कैसे है? When the economy is performing good, the government is stepping back. When the economy is performing poorly, the private sector is performing poorly, the government steps in. So this is a negative correlation, and this negative correlation is large for countries like US and UK, whereas it is small for countries like India. So इस चीज में हमको देखना है कि हमें इस नेगेटिव कोरिलेशन को इम्प्रूव करना है, लाइक बढ़ाना है. So this is what the government needs to keep in mind. Now if I talk about the policy recommendations, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है. पब्लिक इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा. सो द पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्राउड्स इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जैसा मैंने कहा है, इंक्रीज इन like if you bring in government, it increases the trust of the public. ठीक है. This would increase trust in public. Now if I talk about chapter 3, which is does India's sovereign credit rating reflect its fundamentals, the answer clearly is no, it does not. Now why am I saying this? अगर मैं credit rating की बात करूँ, just a second, so why am I saying this? मैं ये इसलिए बोल पा रही हूँ, क्रेडिट रेटिंग की बात मैं इसलिए कर पा रही हूँ कि अगर यहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइजर टॉक्ड अबाउट इमर्जिंग जायंट्स एंड established giants. So established giants included countries like USA, whereas emerging giants included countries like India and China. ठीक है. So if you look at the graph here, it was very well explained कि अगर if we talk about 5 countries जब वो enter किए थे in the top about countries that entered the top 5 economies of the world, they were rated as AAA in the case of established giants. Whereas जो emerging giants हैं उनके केस में, like in case of China and in case of India अगर हम देखें, so the rating is low comparatively. तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे वी रियलाइज दैट इमर्जिंग जायंट्स जो हैं, इमर्जिंग जायंट्स मतलब चाइना एंड इंडिया जैसी कंट्रीज जो हैं, दे आर नेसेसरली नॉट गेटिंग द रेटिंग दैट देयर फंडामेंटल्स पॉसिबली डिमांड. उनके जो फंडामेंटल्स डिमांड कर रहे हैं, प्रॉबेबली वो क्रेडिट रेटिंग जो है वो इन इमर्जिंग जायंट्स को नहीं मिल रही है. ठीक है.
नाउ ये क्रेडिट रेटिंग क्या है? सो अगर क्रेडिट रेटिंग की बात करी जाए, सो इट इज अ मैपिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मतलब क्या चांसेस हैं डिफॉल्ट करने के एक कंट्री के, ये जो चीजें ये रेटिंग में मेंशन्ड है. सो नाउ हाउ इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एनालाइज्ड? अब इस प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को हम दो चीजों से देखेंगे, विलिंगनेस टू रीपे एंड एबिलिटी टू रीपे. सो इफ अ कंट्री बोरोज some amount, what is its willingness to repay and what is its ability to repay. now अगर willingness to repay of India देखा जाए, इंडिया की विलिंगनेस टू रीपे देखा जाए, तो यहाँ पे द इकोनॉमिक सर्वे कॉल्स इट गोल्ड स्टैंडर्ड बिकॉज इंडिया हैज नेवर डिफॉल्टेड ऑन इट्स डेट ऑब्लिगेशन. हमने अपने डेट ऑब्लिगेशन को कभी डिफॉल्ट नहीं किया है. ये कैसे कहा जा सकता है? सो इवन ड्यूरिंग द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस, अगर हम 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, जब बीओपी क्राइसिस हुआ था कंट्री में, even then we made sure that we shipped gold to the Bank of England, ठीक है, to cover our obligations, to honor our obligations. तो ये सारी चीजें हमने willingness to repay में देखी. Now if I talk about the ability to repay, तो एक चीज देखा जाए अगर, तो इंडिया के रिजर्व जो है वो adequate है कि अगर to withstand even a 0.1% probability event, तो अगर 1 in 1,000 situation comes like this, even उसके लिए इंडिया के reserves are adequate. तो हम देखते हैं कि in terms of both willingness to repay and also the ability to repay, इन दोनों केसेस में इंडिया शुड हैव द हाईएस्ट रेटिंग. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन टर्म्स ऑफ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू रीपे, व्हिच इज seen in the cases of rating. Now if I talk about growth, inequality and growth की अगर बात करूं, so conflict and convergence की बात होती है. So देखा जाता है कि जो established giants हैं, in case of established giants of the developed countries, there is a conflict in inequality and growth, whereas in cases like countries of cases in India and China, we see that there is a convergence in inequality and growth. ये कैसे, ये आगे explain करते हैं. So unlike advanced economies, there is no conflict between growth and inflation. So what the economic advisor explains is that अगर हमको country में inequality reduce करनी है, we need to reduce poverty. And how is the poverty reduced? It is reduced through the increase in economic growth. So economic growth हमको inequality reduce करके नहीं लानी है. Inequality will automatically get reduced when we reduce the poverty. So in economic growth अगर हम लेकर आएंगे, if there is growth in the economy, there will automatically be reduction in poverty, and this reduction in poverty will lead to reduction in inequality. ये एक चीज है जो इसमें explained है. Now coming to the next is increase in public healthcare spending. So if I talk about increased public healthcare spending, तो यहाँ पे बताया जाता है, ये countries शोन है यहाँ पे, कंट्रीज एक बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, वियतनाम एंड थाईलैंड. सो यहाँ पे अगर मैं इसको बस शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो ये बोला जा रहा है दैट इफ द government increases public healthcare expenditure, which is approximately like 1% as of now, अगर इसको बढ़ा के 2.5% approximately और 3% कर दिया जाता है of GDP, then एक इंडिविजुअल का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर विल रिड्यूस फ्रॉम 65% to 35%, विच इज ह्यूज. तो अगर हम अपने जीडीपी के एक्सपेंडिचर को इन हेल्थ केयर इंक्रीज कर देते हैं तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा. बट इसका यूज क्या है, हम इसको यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सो यहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ रिड्यूसेस, व्हिच मींस द फैमिलीज और द इंडिविजुअल्स विल स्टार्ट सेविंग मोर. उनका हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा तो उनकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी. तो जैसे ही उनकी ये चीज बढ़ती है, दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर, उनका कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा. So that will lead to an increase in economic growth. तो यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये बताते हैं कि अगर हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, वी विल बी एबल टू ब्रिंग इन मोर इकोनॉमिक ग्रोथ.
Now, if I talk about asymmetric information in healthcare, so Nobel Prize winner Kenneth Arrow in 1963 highlighted this, in which he said कि private hospitals जो हैं they charge much higher than the government hospital for the same treatment. अगर एक cardiology, अगर heart का कोई ailment है, उसका treatment अगर होना है, so the private sector will definitely have a larger price for it than compared to the government hospital. ठीक है, and this difference is approximately 4 times in cases of cancers. यहाँ पे अगर देखा जाए, so this red one is like public hospitals and green वाला is private. So this is approximately 4 times. In case of cardio, it is approximately 7 times. तो हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा differences हैं. So this definitely tells you, ये हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर एट पार विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स. ठीक है, यहाँ पे हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं दिस डिफरेंस which is very high for like the amount of for the treatment of the same ailment is comparatively much higher in private hospitals. So this is like asymmetric information के case में there's one thing which the chief economic advisor said. He said that the laissez-faire फ्री इकोनॉमी, लेजे फेयर की अगर हम बात करें, सो दिस लेजे फेयर इन हेल्थ केयर मे नॉट बी द ऑप्टिमल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ केयर बिकॉज ऑफ asymmetric information. This is what the chief economic advisor meant when he said this. Now the next is the regulatory forbearance an emergency medicine and not a staple diet. तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो रेगुलेटरी फोरबियरेंसेस होने चाहिए, that should be taken as एज एन एमरजेंसी मेडिसिन. मतलब उसको रेगुलेटरी चीजें जो है उनको टेम्पररी तरीके से लेना चाहिए, नॉट एज अ स्टेपल डाइट, ये रेगुलर बेसिस में नहीं लेना चाहिए. सो अगर यहाँ पे एक्सप्लेन की जाए तो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया है. सो अगर यहाँ पे बात करें पहले हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो यहाँ पे द इकोनॉमिक सर्वे एक्सप्लेन्स कि यहाँ के जो रेगुलेटरी फोरबियरेंसेस थे, दे हेल्प द बोरोअर्स ओवर टेम्पररी हार्डशिप. लेकिन ये जो फोरबियरेंसेस थे, ये क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी यूज किए गए, रखे गए, therefore this resulted in unintended consequences for the economy. इसका क्या मतलब है? अगर जो एग्जाम्पल हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने यूज किया था, अगर मैं उस एग्जाम्पल से आपको सॉरी अगर उस एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सो ही सेज दैट assume कि आप sick हैं and you go to a doctor and you tell the doctor that you are sick. So he prescribes you medicine for 3 days and he says कि 3 दिन खा के आप ठीक हो जाएंगे. Now on the very 3rd day you realize कि यार if I don't take this medicine for long, maybe मुझे ये disease फिर से हो जाए. So instead of taking this medicine for 3 days which the doctor asked you to, you take this medicine for 30 days or maybe for 3 months. Now इससे क्या होगा? Instead of helping your body, the medicine would harm you. तो यहाँ पे वही केस है कि ये जो फोरबियरेंसेस हैं, ये एक इमरजेंसी की तरह, एक टेम्पररी हेल्प की तरह लेने चाहिए एंड नॉट एज अ स्टेपल डाइट, रोज के खाने की तरह नहीं. ठीक है, सो इससे अगर हम देखेंगे कि अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे क्योंकि ये इनको लॉन्गर टर्म में यूज किया गया था, so it resulted in an unintended consequences for the economy, and instead of stabilizing the economy or instead of helping the economy grow positively, there was ups and downs seen in the economy. ठीक है, now the last one is talking about the innovation. So यहाँ पे बोला जाता है कि इंडिया entered top 50 innovating countries for the first time in 2020. जब से ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2007 में आया है, तब से फर्स्ट टाइम इंडिया in 2020 entered top 50 innovating countries. Now यहाँ पे वो ग्राफ शायद गिवन नहीं है, which is mentioned here I think. यहाँ पे ये ग्राफ mentioned है. ठीक है, ये जो ग्राफ है, नहीं, not this one. ओके, सो यहाँ पे ये ग्राफ मेंशन्ड है. दिस ग्राफ आप इसको खोल के देख लीजिएगा, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है. इसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि हाउ इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में R&D में जो एक्सपेंडिचर है, दैट इज मेजॉरिटी ये जो है, ये एक्सपेंडिचर इज बाय द गवर्नमेंट, वेयर एज इन द केस ऑफ एस्टैब्लिश्ड जायंट्स, जो एस्टैब्लिश्ड जायंट्स हैं R&D सेक्टर में, द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, so the government sector contributes disproportionately large share in total GERD. ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया.
and the business sector's contribution to GERD is amongst the lowest when compared to the top 10 economies of the world. ठीक है, सो हमारे यहाँ के प्राइवेट सेक्टर्स नीड टू फोकस मोर ऑन R&D. ठीक है, ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है. अपार्ट फ्रॉम दिस, the economic survey also focuses on the जन आरोग्य योजना and demonstrates, ये बताता है कि जन आरोग्य योजना जिन जिन स्टेट्स में आई, जो स्टेट्स लेकर आए, जिनने अडॉप्ट करी, those states have shown positive effects on healthcare outcomes. उन स्टेट्स ने पॉजिटिव आउटकम्स शो किए. दिस कंटेन्स डिटेल कि कैसे उनने कंपेयर किया, किन किन स्टेट्स को कंपेयर किया, किन किन इंडिकेटर्स पे कंपेयर किया. सो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ओवरऑल अगर देखा जाए, सो द कंपैरिजन, यहाँ पे जो कंपैरिजन है, दैट रिफ्लेक्ट्स कि इंप्रूवमेंट्स हुए हैं in several health indicators in states that implement, जो मैंने बताया कि जिन स्टेट्स ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसको इम्प्लीमेंट किया, इसको अडॉप्ट किया, those states have significantly shown improvement in various health sectors. So now the last one is about bare necessities. bare necessities क्या होती हैं? रोटी कपड़ा मकान, ये bare necessities कही जाती थी. So अगर bare necessities की हम बात करें और 2018 और 2012 को कंपेयर करें, तो यहाँ पे बताया जाता है कि this access to bare necessities, कितना एक्सेस, कितने फिजिबली हम एक्सेस कर सकते हैं इन बेयर नेसेसिटीज को, दैट हैज इम्प्रूव्ड अक्रॉस ऑल द स्टेट्स. कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे ये इम्प्रूव नहीं हुआ है. सो दिस इज बेसिकली, दिस is talking about this map here. यहाँ पे 2012 एंड 2018 को कंपेयर किया गया है इंडिया के सारे स्टेट्स में. एंड आप इसको खोल के देख लीजिएगा एक बार. इसमें बताया जाता है कि सारे स्टेट्स में इम्प्रूवमेंट है इन एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज. एंड द हाईएस्ट, सो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ पर है? द हाईएस्ट इज इन स्टेट ऑफ केरला, पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात. एंड द लोएस्ट इज इन स्टेट ऑफ उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट तो सब में है, बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन इंप्रूवमेंट. ठीक है, नाउ द इम्प्रूवमेंट इज इन 5 डायमेंशंस. ये डायमेंशंस क्या है? वही एक्सेस ऑफ वाटर, हाउसिंग, सैनिटेशन, अदर फैसिलिटीज एंड माइक्रो एनवायरमेंट इंडिकेटर्स. सो अगर हमें इन इम्प्रूवमेंट्स के लिए क्रेडिट देना है, सो वी कैन focus on the schemes like Jal Jeevan Mission and Swachh Bharat Mission Gramin. Now one thing that becomes very important, very important is this index. ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये bare necessities index कहाँ से आया, कौन लेकर आया, किसने रिलीज किया. So this BNI, bare necessities index, is released by the Economic Survey 21, which is by the Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग, दिस इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, ये एक एनुअल इंडेक्स है, विच इज एन एनुअल हाउस होल्ड सर्वे. एनुअल हाउस होल्ड सर्वे है ये ध्यान रखना है. एंड इज डन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग the economic survey volume 1. if you have any doubts regarding the economic survey volume 1, please feel free to comment. Thank you.